Good morning, students. Today, I will discuss with you one of the most important topics of transformation: interchange of affirmative and negative sentences. In the previous video, I discussed with you two methods of changing affirmative sentence into negative sentence. Those methods were by using antonyms and by removing adverb to. In this video, today I will discuss by using degrees of comparison. Today I will discuss by using degrees of comparison. As as you all know that there are three degrees of comparison in English language: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive, comparative, and superlative degree. Students, in this topic, you will see that if any sentence is written in the positive degree, that sentence can be changed into that sentence can be changed into that sentence can be changed into comparative degree, or any sentence is written in comparative degree that can be changed in positive degree. So through various examples I would like to explain each and every part of this rule. So you must pay proper attention to my video, and it is my suggestion for you that you should watch this video from beginning till the end of this video. So the name of the rule is, today I will discuss with you by using degrees of comparison. By using degrees of comparison. For example, Ram is Ram is as good as Mohan. Ram is as good as Mohan. Students, you can see here, this is the positive degree. Okay, there are three degrees: positive, comparative and superlative. तो पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट्स जो होती है उसको हमेशा यहाँ पे एज के बीच में ही पॉजिटिव डिग्री को हमेशा लिखते हैं, एज या सो एज और सो एज में जो एक माइन्यूट डिफरेंस है वो ये है कि जब कभी यहाँ पहले से ही नॉट होता है, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है तो हम वहाँ पे सो एज यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम एज यूज करते हैं. ओके, so students, I would like to explain the structure of this sentence. Ram is as good as Mohan. This sentence has been written in positive degree. Now the question is that you have to change this sentence into comparative degree. Okay, so first of all I would like to explain the structure of this sentence. Subject, verb, positive degree, adjective of positive degree,
and this one is also subject, so you can assume it subject 1 और ये हो जाएगा subject 2. Okay, so if you have to change it in comparative degree, इसे आपको comparative degree में change करना है. तो जब हम इसे comparative degree में change करेंगे तो इसका structure इस टाइप से हो जाएगा. ये जो S2 है इसे हमें पहले लिखना होगा. मोहन is not better than राम. तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस S1 प्लस यहाँ पे S1 को हम लिख लेते हैं. तो स्टूडेंट आपको ये समझना है कि जब ये पॉजिटिव डिग्री में था तो ये नॉट हमने जब यूज किया, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है और ये पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गई. और कंपैरेटिव डिग्री में ये कंडीशन होती है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को हम कंपैरिजन के लिए शो करते हैं, कंपैरिजन एक्सप्रेस करने के लिए ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है. तो जब इस सेंटेंस को हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. स्टूडेंट आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना होगा. S2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गिवन पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री में वर्ड होगा उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज करेंगे, फिर देन यूज करेंगे और फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे यूज करते हैं. Another example. He is as intelligent. He is as intelligent as I. तो इसका चेंज हो जाएगा, ये S1 ये S2. अभी मैंने जो इससे पहले एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें यहाँ पे नाउन्स लिखे थे मैंने, और अब ये प्रोनाउन के थ्रू कंपैरिजन है. ये पॉजिटिव डिग्री है. यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जैसे टाल टालर टालेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट. बट यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमें मोर इंटेलिजेंट लिखना होगा. मोर इंटेलिजेंट बिकॉज इसका एक ये रीजन है ग्रामर में कि जब किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो हम उसमें मोर यूज करके कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट यूज करके सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन टू मी एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म. तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा I am not more intelligent. I am not more intelligent than he. एक चीज यहां पे आप लोग ध्यान रखिए हमेशा, ये जो मैंने ही यूज किया है ये सब्जेक्टिव केस होता है. इसका केस सब्जेक्टिव केस है. दैट के बाद मोस्टली सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज करते हैं. सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं. इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा. ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस में जैसे आई, माई, मी.
तो आई सब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस। तो जब कभी देन के बाद डिपेंड ये करता है कि हमारा जो कंपैरिजन है अगर वो सब्जेक्ट से है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे आएगा। जब कभी कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो जाता है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम आपको केवल आपको ये बताना चाहेंगे कि देन के बाद जब कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है तो सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यहाँ पे लिखते हैं। एक आपका टॉपिक इसमें कंप्लीट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसमें आप लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस लेते हैं। He is taller than you. He is taller than you. ये S1 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस S2, ये सब्जेक्ट 2 हो जाता है। अब इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में इसको लाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री में। इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, ओके, इसको पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो इसमें इस तरीके का रूल हो जाएगा, ये S2 जो है ये सब S1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस S2 को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा you are not so tall, you are not so tall as he। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका स्ट्रक्चर हो गया S2 प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पे जो ये U के साथ R आया है, ये इसलिए U के साथ R आया है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो जब कभी यहाँ पे is, am, are होगा तो इधर से जो भी हम S2 के फॉर्म में जो भी सब्जेक्ट इधर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे is, am, are लगेगा। अगर यहाँ पे was आया है तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब जो पास्ट फॉर्म में हो सकती है was या were, वो यहाँ पे आ सकता है। तो ये हो गया S2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस S1 प्लस यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका S1, ये S1 ही है तो ये S1 यहाँ पे यूज कर लिया गया। और ये S2 इसको सपोज करते हैं जो देन के बाद में सब्जेक्ट दिया होता है तो S2 हम यहाँ पे पहले लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसा टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फिर हमें नॉट यूज करना है क्योंकि सेंटेंस को हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। फिर नॉट के साथ जैसा कि मैंने बताया था कि जनरली सो यूज करते हैं। फिर पॉजिटिव डिग्री, टालर की पॉजिटिव डिग्री टाल, फिर एज यूज करते हैं और फिर S1 मींस जो ये सब्जेक्ट आपका है ही, तो इसको हम S1 के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव बना सकते हैं, और अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर और है कि अगर कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री का कोई स्ट्रक्चर है कि जैसे राम is the
Ram is the tallest boy in the class. राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है और ये सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में है, मीन्स इसमें नॉट नहीं यूज किया गया है। इसे हम नॉट यूज करके भी लिख सकते हैं, मीन्स इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। इसी सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में अगर लिखें तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा राम इज taller than any other boy in the class. Any other boy in the class. तो ये जो दोनों सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को, ये एक सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है और ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस का एक तो सेंस एक ही है, और अगर चाहे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आए तो भी वही नेगेटिव बनेगा, और अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है तो भी वही नेगेटिव बनेगा। तो इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि इस सेंटेंस को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये नाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगा होता है। ये इतने पार्ट हो गए इस सेंटेंस। इसमें भी हम उतने पार्ट कर सकते हैं, जैसे राम, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, टालर देन, ये एक अलग पार्ट हो गया। अब जो हमें स्ट्रक्चर जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे एनी अदर लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री में पहले हम आपको इस स्ट्रक्चर को फोकस करके बता रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास is as tall as Ram। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूं। एनी अदर को नो अदर में चेंज कर लेंगे, एनी अदर की जगह पे नो अदर यूज करेंगे, तो ये हो गया नो अदर बॉय इन द क्लास। ये एक फ्रेज है, इन द क्लास। फ्रेज किसी भी टाइप की हो सकती है, तो इन द क्लास यहाँ पे है तो हम इन द क्लास मेंशन कर लेंगे। नो अदर के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन मिलेगा, जैसे यहाँ पे बॉय है तो नो अदर के बाद उस नाउन को लिख लेंगे, फिर उस फ्रेज को लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये हेल्पिंग वर्ब जैसा टेंस हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर यहाँ पे वॉज या वर्ब होता तो हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते। फिर एज, टाल का मतलब ये जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था इसकी पॉजिटिव डिग्री, देन को रिमूव कर देते हैं और एज के बाद में जो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे जो मेन नाउन है इस सेंटेंस का उसे लिखते हैं। अगर इस रूल को हम सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में अप्लाई करना चाहें तो जैसे सेंटेंस था राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये जो पार्ट बचता है यहाँ पे नाउन और नाउन के साथ जो फ्रेज है, इसी से पहले हम नो अदर ऐड करेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास। अब ये जो नो अदर ऐड कर रहे हैं इसका एक ही रीजन है कि हमें चूंकि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सेंटेंस को हम स्ट्रक्चरली चेंज कर रहे हैं और उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारा सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसमें जब हम ये कर लेंगे कि नो अदर बॉय इन द क्लास, यहाँ पे नो अदर ऐड कर लेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एज। अब द टॉलेस्ट जो दिया है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द हमेशा यूज होता है, बट जब हम पॉजिटिव डिग्री में ले जा रहे हैं तो हम एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बाय यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज करके हम जो है ये
अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये तो किस फॉर्म में लिखा था वो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों सेंटेंस तो पॉजिटिव फॉर्म में ही थे, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में थे। इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस का सॉल्यूशन ये हमने चेंज कर दिया, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो चाहे सेंटेंस आपके एग्जाम में ये आए चेंज करने को, चाहे ये आए, दोनों का सॉल्यूशन यही सेंटेंस होगा। इस वीडियो को आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम regarding understanding of this topic, you may share your comment, you may share your problems through the comment, and I will try my best to resolve your problems. Thank you.